এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর এইচডি লাইভ 24/7 এ Tabuk ni bisingo jotone she kotor kosto bangkha AGT Live 24/7 की सबसे बड़ी खबर ব্রেকিং নিউজ নাও অন এইচডি লাইভ 24/7 নেশামুক্ত যুব বিকশিত ভারত প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে শুরু 100 সপ্তাহব্যাপী দেশব্যাপী জন আন্দোলন। দেশের যুব সমাজকে মাদকাসক্তির কবল থেকে মুক্ত করে একটি সুস্থ সচেতন ও বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হল বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযান নেশামুক্ত যুব কর্মসূচির। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীন মাই ভারত এর উদ্যোগে আয়োজিত এই দেশব্যাপী জন অংশগ্রহণমূলক অভিযানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি এই কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন। এই অভিযানকে দেশের অন্যতম বৃহত্তম যুব নেতৃত্বাধীন জন আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এতে দেশের 125টিরও বেশি আধ্যাত্মিক সংগঠন, মাই ভারত স্বেচ্ছাসেবক, এনএসএস ভলান্টিয়ার, যুব ক্লাব, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা এনজিও, শিল্প সংস্থার যুব শাখা সহ অসংখ্য অংশীদার একযোগে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশ জুড়ে 25,000-এর বেশি স্থানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হয়। 1 কোটিরও বেশি তরুণ তরুণী একসঙ্গে মাদক মুক্ত ভারতের শপথ গ্রহণ করে সমাজ থেকে মাদকের অভিশাপ দূর করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন এবং যুব সমাজকে মাদক বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান। এই কর্মসূচির মাধ্যমে শুরু হলো 100 সপ্তাহব্যাপী একটি ধারাবাহিক জন আন্দোলন। আগামী দিনগুলোতে দেশ জুড়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সচেতনতামূলক প্রচার, পদযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধ্যান ও যোগাভ্যাস, আলোচনা সভা, পথনাটক, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং স্বেচ্ছাসেবক নেতৃত্বাধীন প্রচারাভিযানের মতো নানা কর্মসূচির মাধ্যমে মাদক বিরোধী বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। সরকারের লক্ষ্য যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি মাদক মুক্ত ভারত গড়ে তোলা এবং বিকশিত ভারত 2047-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সামাজিক সচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততাকে আরও শক্তিশালী করা। মাই ভারত ত্রিপুরার উদ্যোগে আগরতলা ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হয় মূল অনুষ্ঠানটি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু, ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর দেবব্রত দাস, ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার সমীর কুমার শীল, রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ সমাজ শিক্ষা দপ্তরের স্পেশাল সেক্রেটারি তপন কুমার দাস এবং পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার সহ মাই ভারত ত্রিপুরার অধিকর্তা মাহবুব আলম লস্কর সহ অন্যান্যরা। अपन पहले भी सुनते थे कभी राज्य में एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर अटैक करना है तो उसके आगे पीढ़ी को खत्म करना है। राजा का बेटा है और जो भी है पहले उसको नाश करने के लिए अलग अलग तरीके से सोचते थे। उसमें एक पॉइजन भी होता था। वैसे ही अभी अपना नेबरिंग कंट्रीज जो अपना देश का एकेडमिक प्रोग्रेस देखते हुए नाराज है, वो अपना इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए किसी न कैसे तो भी ये करने के लिए देख रहा है। अभी विश्व भर में अपना स्ट्रेंथ है अपना यूथ, तो जितना यूथ अपने भारत देश में है वो दूसरे कंट्री में कहाँ भी नहीं है। अभी वो भी एजुकेटेड यूथ है, एनालिटिकल यूथ है, उसीलिए इधर के यूथ को नाश करना। तो अभी वार बोले तो फिजिकली एक दूसरे के पास जाके मिलिट्री वार करने का नहीं है। अभी वार अलग अलग किस्म के है, जैसा न्यूक्लियर वार, केमिकल वार, डिजिटल वार, रेडियोलॉजिकल वार, बायोलॉजिकल वार, इकोनॉमिक वार, वाटर वार, ऐसे बहुत है। तो अभी पहले अपन देखे हैं साइबर वार अपने पास शुरू करके नॉर्थ इंडिया में एक बार पूरे रेलवे लाइन को डिस्टर्ब करे हैं। वैसे ही एक बार इलेक्ट्रिकल लाइन में वो ये करके नॉर्थ इंडिया में इलेक्ट्रिकल लाइंस पूरे डिस्टर्ब करे हैं, ट्रांसमिशन लाइंस। अभी रिसेंटली 4-5 मंथ्स बैक अमेरिका में ये एरोप्लेन्स चलने का उनका भी सिग्नल्स डैमेज करने से थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स दे हैव ग्राउंड डाउन। तो ऐसे आगे क्या क्या चीजें कर सकते हैं ये अपने को मालूम है। और लेटेस्ट ये बायोलॉजिकल वार में अपन कोरोना देखे हैं, कैसे अपना बाजू शत्रु देश कैसे ये करे हैं। तो अपन सशक्त रहना है। ये ड्रग्स बॉर्डर स्टेट रहने से इधर बाहर से ज्यादा ड्रग्स इधर लाके इधर अपने यूथ को
हेल्थ सोसाइटी को खराब करने के लिए देख रहा है। तो अपन उससे सशक्त रहना है। जहाँ जहाँ भी ये होता है तो उसको तुरंत डिपार्टमेंट के इसमें लाना है। और 1855 फ्री टोल नंबर है, आप उसको इमीडिएटली कंप्लेन कर सकते हैं। और आप जो कंप्लेन करते हैं आपका नाम बाहर नहीं आता है, आपका टेलीफोन नंबर भी ये किसी को नहीं बोलते हैं। तो वैसे अपन ये करने हैं। और दूसरा जो ऑलरेडी एडिक्ट है, ये एडिक्ट है सो वालों को भी अपन काउंसलिंग करके उसको अपने सीधे रास्ते में, अच्छे रास्ते में लाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग से उनको लाने का जरूरी है। और वैसे ही अगर जो एडिक्ट है उनके लिए मैं एक सुझाव देता हूं कि क्यों एडिक्ट हुआ, कैसे एडिक्ट हुआ और उसके बारे में आपके मन में क्या है, एक लेटर लिखो, क्या कागज के ऊपर लिखो। कोई उसको नाम लिखने का जरूरी नहीं है, तो वो आपके लाइब्रेरी में छोड़ दो, दूसरे पढ़ेंगे। और वैसे धीरे धीरे से अपन अपना गलतियां पेपर में लिखते समय अपने को थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज आने का स्कोप है। तो ऐसे अपना वीकनेसेस और कैसे कैसे अपने वीकनेसेस को अपन ओवरकम कर सकते हैं, ये आपको ये सकते हैं। और दूसरा, ये नशा यानी इंटॉक्सिकेशन जो होता है, काली बंग पीने में, ड्रग्स लेने में या किसी ये लेने में नहीं होता है। अपना थिंकिंग जो है, अपना इन्वॉल्वमेंट जो है, किसी में टोटल इन्वॉल्वमेंट होता है तो नशा वही आता है। जैसा स्टेडियम में जाते हैं तो स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हैं या दूसरे के खेलते हैं, तो उस टाइम पे अपने टीम अगर आगे जा रहा तो कितने इंटॉक्सिकेशन, उधर तो आप पी के तो नहीं जाते, उधर पीने का तो स्कोप ही नहीं है, मगर आपका जो सोच है उसमें आता है। वैसे ही पहले 1970s में हिप्पी कल्चर था। तो हिप्पी कल्चर के बारे में आपको मालूम होगा कि उस टाइम पे एक बड़ा पैसे वाला, उनके बच्चा हिप्पी कल्चर में गया, ड्रग्स एडिक्शन में गया। तो एक स्वामी जी को वो बोले हैं कि मेरा बेटा ऐसा हो गया है, इसको कुछ ना कुछ करो। तो वो स्वामी जी ने हिप्पी के कल्चर वालों के पास जाके वो क्यों हो रहा है क्या बोल के मालूम होने के बाद इनको फिर नेचुरल इसमें लाना बोल के उसको भजन सिखाए हैं। तो भजन सिखाते सिखाते वो भजन में वो जो लीन होते हैं तो उनके लिए नशा का जरूरी नहीं है। कभी कभी रोड के ऊपर भजन करने वालों को देखते हैं तो अपन बाकी के लोग समझते हैं कि पी के कूद रहा है, पी के नहीं, वो इन्वॉल्वमेंट होके वो ये कर रहा है। तो अपन पहले अपना एक्टिविटी जो है उस दिशा में स्पोर्ट्स, गाना, भजन, इसके ये दिशा में गए तो अपन दूर रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट AGT Live 24/7।